Dear student, today we are going to learn about second and third laws of motion. Before these two laws, we will learn about the momentum. The term momentum is denoted by P, small p. It is, this term was introduced by Sir Isaac Newton. Okay, Isaac Newton defined it as the momentum of any body is the product of its mass and its velocity. So, momentum of any body is the product of its mass and velocity v. Okay, so P is equal to mv. P is equal to mv. It is the momentum. Actually, momentum is a physical quantity having both direction as well as magnitude. That is why it is a vector quantity. And SI unit of momentum is kilogram per kilogram meter per second. Kilogram meter per second. As SI unit of mass is kg, मास का SI यूनिट kg होता है, एंड वेलोसिटी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, एंड टोटल टुगेदर SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम meter per second. Okay, so now we are going to study about the second law of motion. Second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of that force. Okay, the rate of change of momentum, this is momentum mv, and rate means mv divided by t. Actually mv momentum divided by time. So this is the rate of change of momentum. This is the rate of change of momentum. Okay, rate of change of momentum, and it is equal to, it is directly proportional to the applied unbalanced force. So suppose an object of mass m is moving along a straight line, okay, with a initial velocity u. एक मास m है जो सीधी रेखा में जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी v के साथ. ओके, इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू अ वेलोसिटी v. अब उसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है v इन टाइम t टाइम के दौरान, बाई अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स f ड्यूरिंग द टाइम t. ओके, तो व्हाट विल हैपन, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ जा रही है तो इसकी मोमेंटम भी बढ़ेगी. सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी p1 is equal to mu. Initial momentum of that object, it will be the mass of object m and initial velocity multiplied by initial velocity. So p1 is equal to mu, and similarly final momentum p2 is equal to m, mass is remain same but velocity will be v. This is the final velocity. So this is the initial momentum and this is the final momentum p2. Okay, so change in momentum, it means final momentum minus इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, जैसे चेंज इन वेलोसिटी हम लिखते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, they are directly proportional to the final momentum minus initial momentum, and value of final momentum is mv and value of initial momentum is mu. So this is m is common, and we can write in bracket v minus u. So रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब हो जाएगा टाइम, रेट का मतलब है टाइम से, और इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. ये
फोर्स के बराबर होगा. ओके, एंड नाउ force is directly proportional to the rate of change of momentum. This is okay. Now if we try to remove this sign of proportionality, we have to use a constant known as constant of proportionality k को हम यूज करेंगे. और अब f is equal to k m in under bracket v minus u. V it is final velocity and u is the initial velocity divided by time. Okay, now अब we know that acceleration, this part is acceleration, rate change of velocity is known as acceleration. So acceleration this, so this part of formula 1 equation 1 will be replaced by a. अब इसको a से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, f is equal to k m a. ओके, ना अब देखिए इस पेज पर, where k is the constant of proportionality. if unit of mass is 1 kg, अगर हम यूनिट ऑफ मास को 1 kg में लेते हैं एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर स्क्वायर में लेते हैं, तो देन व्हाट विल हैपन, द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k विल बी 1. इसका यूनिट 1 हो जाएगा. तो हम फिर फार्मूला क्या आएगा आपके पास, f इज इक्वल टू एम ए. f इज इक्वल टू एम ए. दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, it is f is equal to ma. So SI unit of force, f is equal to force, f means force, is kilogram meter per second square, because f is equal to क्या हो रहा है, m and a. m is mass, तो इसका kg होगा, मास का SI यूनिट kg होता है. एक्सेलरेशन इट इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी कहते हैं, इन ऑनर ऑफ सर आइजैक न्यूटन. इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल N, न्यूटन. ओके, जैसे फोर्स 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 100 न्यूटन, इट इज़ द मैग्नीट्यूड 100 एंड न्यूटन इट इज़ द न्यूटन इज द यूनिट. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब डे टू डे लाइफ में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या एप्लीकेशन है. सो डे टू डे लाइफ, सपोज वी हैव बीन वाचिंग द क्रिकेट मैचेस. ओके, while catching a fast moving cricket ball, a fielder gradually pulls his hand backward. क्रिकेटर जो होता है अपने हैंड को पीछे खींचता है, ओके, बैकवर्ड. ऑन डूइंग सो द फॉलिंग फिल्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू 0. ओके, दैट इज वाई इट्स हैंड गेट लेस अमाउंट ऑफ फोर्स या इम्पैक्ट ऑन हिज हैंड. ओके, तो इम्पैक्ट ऑफ बॉल ऑन हैंड विल बी रिड्यूस्ड. अगर हम टाइम को बढ़ा दें, जैसे खींचते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में गेंद को खींचते हुए, मान लीजिए 2 सेकेंड 4 सेकेंड में पीछे खींचता है गेंद को, तो उसमें टाइम बढ़ जाता है, बिकॉज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. फार्मूला है f इज इक्वल टू m, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. So if time is more, then impact of force will be less. तो ज़्यादा टाइम को बढ़ाने के लिए पीछे गेंद को खींचता है, जिससे कि टाइम डिनोमिनेटर में है, तो फोर्स का इम्पैक्ट हाथ पर कम होगा. दैट इज़ वाई ही पुल्स देयर हैंड बैकवर्डली, ओके, टू इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन. नाउ देखिए, इट मीन्स फोर्स is inversely proportional to the time. In other word, the time is increased, force will be decreased and vice versa. जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स
हाथ पे कम लगेगा, अगर टाइम घट जाता है फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सेकेंड केस में, इफ़ बॉल इज स्टॉप सडनली, अगर फील्डर बॉल को सडनली स्टॉप करता है तो क्या होगा, इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेज टू जीरो इन द वेरी शॉर्टर टाइम, जो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है बहुत कम समय में, 1 सेकेंड में जीरो हो जाएगा उसके हाथ में, तो उसके हाथ पर इम्पैक्ट या उंगलियों में फ्रैक्चर हो सकता है, इम्पैक्ट ज़्यादा लगेगा। ओके, दैट इज़ वाई ही मस्ट पुल हिज हैंड स्लोली। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट, हाई जंप एथलेटिक इवेंट में क्या होता है, हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलीट आर मेड टू फॉल ऑन आइदर कुशन बेड पर गिरता है, फोम का बेड पर, या सैंड बेड या सैंड के बेड पर। ओके, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर द मेकिंग जंप। जब नीचे गिरता है तो उसको कुशन बेड पर गिराया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे टाइम बढ़ जाए, जिससे कि वो गिरे। एक अगर वो हार्ड फ्लोर पर गिरेगा तो इंस्टेंटली टाइम जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और टाइम जब जीरो हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और चोट ज़्यादा लग सकता है। दैट इज़ वाई ही मस्ट बी फॉल ऑन सैंड बेड या कुशन बेड। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट, सो स्टेटमेंट देखिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, when one object exerts a force of another object, the second object instantaneously means तत्काल, instantaneously exert a force back on the first object. Okay, and these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. ओके, जैसे मान लीजिए हम 5 न्यूटन का फोर्स, इफ वी पुट अ 5 न्यूटन फोर्स ऑन wall also impose 5 न्यूटन फोर्स ऑन अवर हैंड। जैसे हम दीवार पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी 5 न्यूटन का फोर्स हमारे पर लगा देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स imposed by wall is also same, that is 5 Newton, but direction of force imposed by wall is just opposite to me. Okay, so these forces act on different object, ये दोनों forces जो हैं वो different object पे लगते हैं, हम लगाएंगे तो दीवार पर, दीवार लगाएगा तो मेरे पर। ओके, and never on the same object, ये दोनों forces एक ही object पे नहीं लगते। ओके, एक दूसरे पर ही लगते हैं। These two opposing forces are known as action force and reaction force respectively. So if we put a force on wall of 5 Newton, this force will be the action force, and instantaneously wall also impose a force on me, या we people are known as reaction force. Okay, so second statement, या this statement can be also written as, in other word, to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different body। ये भी स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के, थर्ड लॉ, ये इसी को कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब इसके एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में कैसे। सपोज अब देखते हैं वॉकिंग ऑन रोड, व्हेन वी वॉकिंग ऑन रोड या ग्राउंड, तो क्या करते हैं हम, वी पुश द रोड बिलो बैकवर्ड बाय अवर फीट, हम अपने फीट से रोड को पीछे धक्का देते हैं। मान लीजिए 5 न्यूटन हम अपने पैर से लगाते हैं रोड पर या अर्थ पर, तो अर्थ भी इक्वल अमाउंट 5 न्यूटन का फोर्स हमारे पैर पे लगा देता है। दैट इज़ वाई वी मूव फॉरवर्ड। तो अर्थ जो फोर्स लगाता है उसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स, और जो हम फोर्स अर्थ पे लगाते हैं उसको कहते हैं एक्शन फोर्स। तो रोड आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फीट टू मेक अस मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली देखिए, मान लीजिए आप किसी स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, सो while we trying
टू स्विम, अ स्विमर पुशेस, एक्शन फोर्स लगाकर पुशेस द वाटर बैकवर्ड एंड बाई हिज हैंड या हर हैंड एंड फीट, then water also exert an equal and opposite force on our hand, that is why we push forward. so this is the action force and reaction force, that is why we move. इसी तरह रॉकेट जो लॉन्च होता है, तो रॉकेट जब लॉन्च होता है तो आप देखते होंगे रॉकेट एक गैस छोड़ता है, तो गैस वो एक तरह से रिएक्शन फोर्स है और उसके एक्शन फोर्स है, और गैस के एक्शन फोर्स में अर्थ भी रिएक्शन फोर्स रॉकेट पर लाता है जिससे रॉकेट ऊपर चलने लगता है. ओके, तो दिस इज द एक्शन एंड रिएक्शन. सो अब एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, नोट कर लिए. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दिस टू फोर्सेस आर ऑलवेज इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इफ वी इम्पोज 10 न्यूटन फोर्स ऑन wall also imposes a 10 न्यूटन फोर्स जस्ट अपोजिट टू मी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ही होगा, बट मे नॉट प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन या मोशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. ओके, जैसे मान लीजिए हम अर्थ पे 5 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो हम मूव होते हैं, अर्थ तो पीछे मूव नहीं होता है. इसका कारण ये है कि अर्थ का मास बहुत बड़ा है हमारे मास से, तो हमारे में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. बिकॉज आप जानते होंगे एक्सेलरेशन ए इक्वल आपने ये भी जाना होगा कि एफ इज, देखिए इसका कारण F इज इक्वल टू एम ए. दिस इज द सेकेंड लॉ. सो A इज इक्वल टू क्या होगा, F डिवाइड बाई M. सो एक्सेलरेशन A क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन का मतलब मोशन ज़्यादा होगा. अगर मास कम होगा तो मोशन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो मोशन कम होगा. तो हमारा मास अर्थ के कंपेरिजन में बहुत कम है, दैट इज़ वाई वी मूव फॉरवर्ड बट अर्थ डू नॉट मूव बैकवर्ड. ओके, सो इसी तरह देखिए, एज each force act on different object and they may have different masses. So that is why एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स सेम ही मैग्नीट्यूड का होगा, बट जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो उसका मैग्नीट्यूड अलग होगा. जो हल्का होगा वो तेजी से भागेगा. देखिए, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑन विच द फोर्स इज एक्ट इज मोर, एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी लेसर एंड वाइस वर्सा. अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन उसमें कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. जैसे आप देखिए, ये फार्मूले से पता चल रहा है. ओके, जैसे आप देखिए राइफल की गोली का मास बहुत छोटा है, इसलिए गोली बहुत दूर तक जाता है, लेकिन राइफल भी बाउंस बैक पीछे होता है लेकिन हल्का सा होता है क्योंकि राइफल का मास ज़्यादा होता है. ओके, सो एक्सेलरेशन A is inversely proportional to the mass of object. This is acceleration A is inversely proportional. जैसे मास बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मास घटाएंगे एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर तक मूव करेगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after collision provided there is no external unbalanced force. Okay, yeah, you can say conservation of momentum in another word, total momentum of the two object is unchanged and conserved by the collision. Total momentum before collision and momentum before after collision will be conserved. Okay, अब देखिए, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन. सपोज अब हम यहाँ पर दूसरे पेज पर चलते हैं, इस पे देखिए ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा. सपोज a two ball roll on an frictionless plane. दो बॉल
है जिसका मास ma है, एक बॉल A का मास ma एंड बॉल B का मास mb. बोथ बॉल मूव ओके with initial velocity ua and ub. बॉल ए का इनिशियल वेलोसिटी ua है, बॉल बी का इनिशियल वेलोसिटी ub है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, सपोज वेलोसिटी ऑफ बॉल ए ua इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉल ub. ओके, तो ये जाकर कुछ देर बाद कोलाइड होगा. अब यहाँ पर देखिए दोनों कोलाइड हो गए. दिस टू बॉल मूविंग ओके इन दिस डायरेक्शन इन इनिशियल वेलोसिटी हैविंग मास ma एंड mb. दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन. ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है, ये सारा बिफोर कोलिजन. और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, देखिए आफ्टर कोलिजन यहाँ पर दोनों बॉल टकरा गए बिकॉज स्पीड ऑफ बॉल ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बॉल बी. तो ये टकराएगा तो क्या होगा, बॉल ए इम्पोज्ड अ एक्शन फोर्स, बॉल ए इम्पोज अ एक्शन फोर्स ऑन बॉल बी. ए बी पर एक फोर्स लगाता है FAB. This is action force. Instantaneously B is also imposed a force on A. B भी एक A पर फोर्स लगा देता है, रिएक्शन फोर्स. ओके, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन. सो B FBA, दिस इज द रिएक्शन फोर्स इम्पोज बाय B ऑन A. अब उसके बाद ये अलग होकर के फिर आगे फॉरवर्ड मूव करने लगते हैं विथ फाइनल वेलोसिटी VA एंड VB. ओके, MA का बॉल ए का फाइनल वेलोसिटी VA हो जाता है और बॉल बी का VB हो जाता है आफ्टर कोलिजन. तो क्या होगा अब देखते हैं. अब देखिए द मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल बी MAUA एंड MAVA respectively. This is the momenta before collision, this is momentum before this is momenta after collision, this is before collision. Okay, so momenta is plural form of momentum. Okay, the rate change of momentum of momenta during the collision will be, ये FAB मतलब एक्शन फोर्स जो A B पे लगा रहा है वो होगा this much. Okay, similarly the rate change of momenta of ball B FBA या reaction force it is during the collision will be this much. Okay, so now according to the third law of motion the force FAB action force will be equal to the reaction force but it is in अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या ले लिए, दिस इज द एक्शन फोर्स इम्पोज्ड बाय बॉल ए ऑन बी एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ बॉल बी ऑन ए. दिस इज माइनस साइन है, दोनों का न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा. तो अब देखिए इस फार्मूले से इसका वैल्यू इतना होगा और इसका वैल्यू इतना होगा. ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज द MAUA प्लस MBUB. दिस इज द मोमेंटा ऑफ टू बॉल बिफोर कोलिजन. ये बिफोर कोलिजन होगा, ये टोटल मोमेंटा ऑफ टू बॉल बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द टोटल मोमेंटा ऑफ टू बॉल आफ्टर कोलिजन. ये टकराने के बाद का मोमेंटा होगा, ये टकराने से पहले का मोमेंटा, और दोनों मोमेंटा बराबर होंगे. ओके, देखिए MAUA प्लस MBUB इट इज टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल AB बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द टोटल मोमेंटा ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन. ओके, एंड दोनों बराबर हैं, यही हमको सिद्ध करना था. ओके, प्रूफ करना था. एप्लीकेशन देख लीजिए इसमें क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज़ बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही कारण है. देयरफॉर ऑल द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम कह सकते हैं. तो लीनियर मोमेंटम से
थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखते हैं यहाँ पर, सपोज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड द होस पाइप। जो फायरमैन होते हैं वो पानी जो होस पाइप से निकलता है फायर फाइटिंग में, उसको पकड़ने में बड़ा मेहनत लगता है। ऐसा क्यों होता है? द होस पाइप विच eject large amount of water at a high velocity. So this is so because ejection of large amount of water at high speed, high velocity from hose pipe result in the development of an equal force of reaction। जैसे होस पाइप से पानी निकलता है तो उसका मास होगा, उसका वेलोसिटी होगा। अब ये एक्शन फोर्स हुआ, वो पानी जो है उस पाइप पर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स के कारण पाइप इधर उधर घूमने लगता है, तो उसको 2-3 फायर फाइटर पकड़ते हैं। उस रिएक्शन फोर्स के कारण उसमें मूवमेंट आ जाता है उस पाइप में। दैट इज़ वाई फायर फाइटर मस्ट टाइटली ग्रिप्ड दिस पाइप। ओके, तो आज का ये पूरा हो गया वीडियो, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके।